आप जी दे जीवन दे अंदर हुण एक शुद्धता दा होना बहुत जरूरी आ ते तुहाडे जीवन दे अंदर एक मचोर विश्वासी बनना बहुत जरूरी आ। तुसीं एक मचोर, एक समझदार, एक मजबूत विश्वासी बनो, नहीं तो आने वाले दिनों के विच तुहाडे भी मन डोल जाणगे। आने वाले दिनों में तुसीं भी बाइबल नूं बंद कर दोगे। वैरी चाहुंदा ही आ इदां दीयां खबरां लिया के कि तुसीं जिहड़े क्रिश्चियनस आ, जिहड़े फेथफुल लोग आ, जिहड़े बिलीवर्स आ, जिन्हां ने नवां जन्म पाया आ, ਉਹ परमेश्वर ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਣ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸਪਲ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਓ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਲੀਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮਾੜਾ, ਮਾੜਾ ਕਿ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਬਰਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਆਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਡਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਹੀ ਚਮਕਦੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਜਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਖਬਰ ਆ ਬਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ।
पर ਮੈਨੂੰ नहीं पता असल सच की आ, पर जो भी आ, पर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੂਕਾ ਉਹਦਾ 5 ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਉਹਦੀ 32 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। कहना मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। कहना मैं धर्मियां दे ਲਈ नहीं पर पापियां दे लिए आया कि ਉਹ ਮਨ ਫਰਾਉਣ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अगर आपने मन नहीं फिराया तो आपने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया। अगर आप यहां संगति में आकर बैठते हैं, अगर आपने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, अगर आपकी लाइफ प्रेयर वाली लाइफ नहीं है, आपके मन की शुद्धता नहीं है, आपके आंखों की शुद्धता नहीं है, आपके हाथों में शुद्धता नहीं है, आप गंदा सोचते हैं, तो आप प्रभु के लोग नहीं हैं। प्रभु के लोगों के बीच बैठकर आप प्रभु के लोग नहीं बन सकते जब तक आप परमेश्वर के वचन को अपने ऊपर रिप्लाई नहीं कर लेते। जब तक इसको आप अपने ऊपर लेते नहीं हैं, और तब तक आप यीशु मसीह के अनुयायी नहीं है। आज मुझे ये वचन देते हुए महसूस हो रहा है कि आपकी जो रूट्स हैं, आपकी मसीह में जो जड़ है, जो नींव है, उसको आपने मजबूत करना है। उस जड़ को और भी मजबूत करो, उस नींव को और भी मजबूत करो। इंसान झूठ हो सकता है, कोई प्रचारक झूठ हो सकता है, कोई नबी झूठ हो सकता है, कोई भी टाइटल झूठ हो सकता है, लेकिन एक ही टाइटल है जो झूठ नहीं हो सकता, वो है यहोवा परमेश्वर, वो है प्रभु, वो है जीसस क्राइस्ट, जिसने प्रेम का संदेश दिया, जिसने प्यार का संदेश दिया। सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा संदेश क्या है? वो पापियों को बचाने के लिए आया। लेकिन इस वचन से हम क्या सीखते हैं? इस वचन में क्या लिखा है? इस वचन में लिखा है, प्रभु पापियों से प्रेम करता है, उनको एक टाइम दिया जाता है वो पाप छोड़ने के लिए। प्रभु पाप से प्रेम नहीं करता, पापियों से प्रेम करता। इसमें समझो, इसमें अंतर है। अगर आपके जीवन में पाप है तो आपको पाप छोड़ने पड़ेंगे। प्रभु आपको पसंद करते हैं, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। आपके द्वारा किए गए अधर्म के कामों को प्रभु मोहब्बत नहीं करते, उनसे नफरत करते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। अगर आप बुलाए गए हैं, बड़ी बात है, ये आपके लिए खुशी की बात है। आपको खुश होना चाहिए। आपको प्रभु ने बुला लिया है, पूरी दुनिया से अलग किया है। अभी आपने अपने पापों को छोड़ना है। अगर आप पापों को नहीं छोड़ते और आपके मन में ये वचन शैतान ने उल्टा करके लटका दिया, आप देखते रहो प्रभु यीशु पापियों को प्रेम करते हैं, तो आप पाप करते जाओ। ऐसा कभी नहीं है, हरगिज नहीं है। ये झूठ है, ये शैतान का झूठ है और सबसे बड़ा झूठ है। परमेश्वर आपसे मोहब्बत करते हैं, और अगर आप अधर्म के काम करते रहे तो वो आपको छोड़ देंगे एक दिन। सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। आपको समय दिया जाता है। कुछ लोग ठीक नहीं होते, कुछ लोग मन की शांति नहीं पाते, कुछ लोग मैच्योर नहीं होते, वो बेबी क्रिश्चियन है। अभी 10 साल हो गए चर्च आते, तब भी बोतल से दूध पीने वाली बात है।
चम्मच से खाना शुरू नहीं किया। और बाइबल ऐसे बोलता है कि जब तुम बुलाए जाओ तो तब तुम सुनो आत्मा कलीसिया से क्या बात करता है। बहुत लोग इस दुनिया में आते हैं, बहुत लोग चर्च में आते हैं, वो सुनते नहीं है पादरी प्रचारण क्या कर रहा है। उसके दिमाग में एक युद्ध चल रहा है। अगर आपके दिमाग में युद्ध चल रहा है तो आप परमेश्वर के द्वारा जो वचन यहां प्रस्तुत किया जा रहा है, जो वचन आपको दिया जा रहा है, आप उस वचन को नहीं ले सकते। आप ले नहीं सकते उस वचन को, क्योंकि आपके मन में युद्ध चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। आने वाली विपत्तियां, आने वाली जो इस धरती पे विनाश करने वाली ऐसी बीमारियां आने वाली हैं, ऐसे जो आपने अभी म्यांमार में देखा है, थाईलैंड में देखा है, चाइना में देखा है, कैसे लोग झूम रहे थे, पूरा का पूरा बिल्डिंग घिरा और सबके सब पता नहीं कहां चले गए और निकाल नहीं पाए वहां से लोगों को। इतनी भारी भारी बिल्डिंग्स, इतना स्टील उसमें डाला जाता है उसको इतनी बड़े बनाने के लिए, कहां से लोगों को निकालेंगे। ये क्या है? सब कुछ परमेश्वर का क्रोध है। धरती कांपती है जब आप गुनाह करते हो। आप, बाइबल कहता है जब भी आप पाप को देखो और भाग जाओ। मैं आज सारी कलीसिया को यह संदेश देता हूं, जहां भी आपके जीवन में कहीं पाप एंट्री करना चाहे, वो स्थान छोड़ो और भाग जाओ। अगर आप बचना चाहते हो, जीवित रहना चाहते हो, अगर आप मसीह की किंगडम में जाना चाहते हो, मसीह से प्यार करते हो, अगर आपने मसीह की शिक्षा को प्राप्त किया है, अगर आपने ये मान लिया, आपको समझ में आ गया परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं लेकिन पापियों से प्यार कैसे करते हैं, वो आपको एक टाइम दिया जाता है। उसी टाइम में आपको पश्चाताप करके अपने पापों को छोड़ना है और धर्मियों के वस्त्र पहनना है। बाइबल में लिखा है उसने धार्मिकता के वस्त्र हमको दिए हैं। अगर आप में से कोई भी विश्वासी, चाहे वो 10 साल से आ रहा है, 20 साल से आ रहा है, 10 दिन से आ रहा है, अगर आपने धार्मिकता के वस्त्र ना डाले तो आप मर जाएंगे, आत्मा में भी और शरीर में भी। बाइबल कहता है शरीर में सब मरेंगे लेकिन आत्मा में सब नहीं मरेंगे। अगर आप दोनों में मर गए तो फिर परमेश्वर का वचन आपने फॉलो नहीं किया। तो उसका फायदा क्या है? आपने परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, उसको समझना है क्या कहता है। अभी आप देखिए, अपनी बाइबल निकालें, हिजकियल की आप किताब खोल सकते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में है, इसमें देखें और इसका 18, इसकी 30 में देखो क्या लिखा है प्रभु का वचन। और ये वचन इतने जबरदस्त हैं, अगर आज आप बाइबल नहीं लेके आए, किसी की कलम लेके आप लिख के लेके जाओ, अपने घर जाके बाइबल में ये पढ़ना क्या लिखा है। ये संदेश परमेश्वर की ओर से है, ना कि किसी पादरी की ओर से है, ना कि पास्टर ध्योल की ओर से है, ना कि किसी व्यक्ति की ओर से है। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। पहली बात, वो क्या कहता है? ये वचन किसका है? सब बोलिए, किसका वचन है? यहोवा का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन किसका है? सब ऊंची आवाज से बोले, यहोवा का वचन है। क्योंकि यहोवा का वचन जो है वो आपको जीवन देता है। इंसान का वचन आपको जीवन नहीं देता, यहोवा का वचन आपको जीवन देता है। और लिखा है प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने। इज़राइल के घराने कौन है भाई? जो लोग चुने जाते हैं, हम उसी को मानते हैं, वो इस्राएल के घराने। अभी इस्राएल के घराने की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही इसमें काफी मुद्दा है
काफी एंगल से हम इसकी बात कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए अभी मैं यही बोलूंगा कि जो लोग चुने जाते हैं उनको हम इज़राइल के घराने का नाम देते हैं, जिनको प्रभु प्यार करते हैं। इस्राएल में सब लोग धर्मी नहीं थे, इस्राएल में भी बहुत पापी थे, गुनाहगार लोग थे, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर के द्वारा परमेश्वर ने एक जन को पकड़ा। सीधी बात नहीं की, जो लोग फंसे हुए थे उनमें से भी किसी को नहीं चुना, परमेश्वर ने मूसेस को चुना, उसको बुलाया वापस, फिरौन में आओ, राजा के सामने आओ, क्योंकि मैं वचन देता हूं, क्योंकि मैं इन लोगों को बचाना चाहता हूं, मैं इन पापियों को धार्मिकता में बदलना चाहता हूं। आज भी परमेश्वर ने आपको पापियों से उठाया है, लेकिन अगर आप अभी भी पाप में रहे तो उसका फायदा क्या है? लिखा ये वाणी यहोवा की है और इस्राएल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। परमेश्वर जब न्याय करेंगे किस रीति से करेंगे? आप चर्च आकर बैठता है, चर्च आकर बात नहीं मानता, चर्च आकर वचन नहीं सुनता, घर जाके प्रार्थना नहीं करता, कभी बाइबल नहीं पढ़ता, और परमेश्वर के लिए आपके मन में कोई इच्छा नहीं है, कलीसिया के लिए कोई इच्छा नहीं है। आप देखो किधर जा रहे हैं। बाइबल क्या कहता है? मैं आपका जो भी चाल चलन होगा उसी के अनुसार ही मैं एक एक व्यक्ति का न्याय करूंगा। जब परमेश्वर आपके जीवन के कामों को देखेंगे तब निर्णय उसी के हिसाब से होगा। आपको परमेश्वर से प्यार करना है। मैं सबको एक ही ये मशवरा देना चाहता हूं, आज आप सभी परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगे। आप आखिरी प्रार्थना में कहें, प्रभु अगर मेरे जीवन में कुछ ऐसी समस्या है, कुछ ऐसे मेरी जिंदगी में गुनाह है जो मुझे लगते हैं गुनाह नहीं है लेकिन तुझे गुनाह लगते हैं, मैं चाहता हूं तू मुझे क्षमा कर प्रभु, तू मुझे माफ कर प्रभु। आज का वचन थोड़ा गहराई का वचन है, थोड़ा हार्ड वचन है, तो अगर आप पूरा ध्यान देंगे तभी आपके दिमाग में इसकी पिक्चर बनेगी। सो थोड़ा केयरफुली फिर कहता है, मैं आपके कामों के और चाल चलन के अनुसार ही आपका न्याय करूंगा। दूसरी बात, पश्चाताप करो। देखो अभी मैंने बोला, और परमेश्वर क्या कहता है? पश्चाताप करो ताकि आपके द्वारा किए हुए अधर्म के कामों का फल आपको ना मिले। आपके द्वारा किए गए ऐसे काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो शैतान को पसंद है, अगर आप वैसे काम कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको उन सभी पापों से बाहर निकालना चाहते हैं इस वचन के द्वारा। और वचन में लिखा है ये वाणी यहोवा की है, और दूसरी बात वो आपका न्याय करेगा, आपके चाल चलन के अनुसार करेगा, और तीसरी बात वो कहता है आप अपने पापों की क्षमा मांगो, पश्चाताप करो। ये रसूलों के कामों में दूसरा चैप्टर, वो सारा वचन उसी में भी लिखा गया है। अपने द्वारा परमेश्वर के उस वचन को लेकर दुनिया में खड़े रहना, नमूना बनना और दिखाना कि आप परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं। आप दिखाएंगे कि आप परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, तभी परमेश्वर आपको अपनी आशीष से ब्लेस करेगा। सभी बोले आमीन। जोर से चलाकर बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको मेरा वचन समझ में आ रहा है तो हाथ उठा के दिखाएं जरा मुझे। वाह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। सब भाई बहन
बूढ़े, बच्चे और बुजुर्ग, ये मैसेज आपके जीवन की प्रमोशन के लिए है। आमीन। आपके जीवन की प्रमोशन होने वाली है। अगर कुछ भी ऐसा आता है जो डाउटफुल है, उससे निकलना ही आपकी प्रमोशन है। मैं विश्वास करता हूं आप निकल चुके हैं और आपकी प्रमोशन हो रही है यीशु मसीह के नाम से। और आज संडे है, आज इबादत का दिन है, आज आपकी बरकत का दिन है, प्रभु ने ठहराया है। और कितने जन आज बरकत लेना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। और वचन में क्या लिखता है? पश्चाताप करो। अच्छी बात है आप चर्च में आए हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने आपसे बपतिस्मा भी लिया हो, आप प्रार्थना भी करते हो, लेकिन कुछ ऐसे अधर्म के काम आपकी लाइफ के साथ जुड़े हैं जिससे परमेश्वर का वचन कहता है कि आप पश्चाताप करो। पश्चाताप करने से क्या होता है? पश्चाताप क्या करता है? अगर हम पश्चाताप करें तो क्या होता है? अगर पश्चाताप ना करें तो क्या होता है? अगर आप पश्चाताप करें, आप बचाए जाते हैं, प्रभु आपको नया जीवन देता है, प्रभु आपके लिए नए नए प्रावधान लेके आते हैं, प्रभु आपको नए नए चांसेस देते हैं। अगर आप पश्चाताप नहीं करते तो आपके सभी नए चांसेस बंद हो जाते हैं, नए प्रावधान आपके जीवन में नहीं आते, आपके लिए नए दरवाजे नहीं खुलते, आपके लिए नए डोर नहीं खोले जाते, नए लोग आपके लिए खड़े नहीं होते, आपके नए कनेक्शन बिल्ड नहीं होते, क्योंकि आपने पहले ही प्रभु से वफादारी नहीं की। तो आप पश्चाताप करें, प्रभु से वफादारी करें। और आगे सुने क्या लिखा है वचन में? और अपने सब अपराधों को छोड़े। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, पश्चाताप करें। मैंने तो पहले जब मैं प्रभु में आया था अपने अपराधों को छोड़ने की बात सुनी थी, लेकिन सुनी अनसुनी कर दी। फिर प्रभु आपको इस बार अपने वचन से कहते हैं आप पश्चाताप करो और क्या करो? साथ में अपने सब अपराधों को छोड़ो। थोड़े अपराधों को छोड़ने की बात नहीं करता, 10 अपराधों को छोड़ने की बात नहीं करता, 20 को छोड़ने की बात नहीं करता, हजारों को छोड़ने की बात नहीं करता, हो सकता है लाखों हो आपके जीवन में। तो कहता क्या है? सब अपराधों को छोड़ो। आपने सब अपराधों को छोड़ना है, आज पश्चाताप करके जाना है और आपकी नींव मजबूत हो जाएगी, आपके रूट्स गहरे हो जाएंगे। अगर आपको कोई धक्का देने की कोशिश करे आप नहीं गिरेंगे, आपको कोई गिराने की कोशिश करे आप नहीं गिरेंगे। कितने चाहते हैं मजबूत बनना प्रभु के साथ? प्रेज द लॉर्ड। लिखता है अगर आप अपने अपराधों को छोड़ें तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अगर आपके द्वारा किए गए गलत काम जो है वो अधर्म के काम है, जो आप काम करते हैं वो आपके ठोकर के कारण बनते हैं, आप गिर जाते। जब देखो ना, जब आप पैदल चलते हो अगर ठोकर लग जाए तो क्या होता है? आप गिर जाते हैं, नहीं तो आपका पैर का अंगूठा जख्मी हो जाता है। क्या है ये वचन? क्या कहता है? समझिए, इसमें भेद की बात है। कहता है तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। देखो कितनी बड़ी बात है। आज ही आप पश्चाताप करेंगे तो आपके जीवन में जो अधर्म के काम है वो आपको नहीं गिराएंगे। अगर आप पश्चाताप नहीं करेंगे तो आपके जीवन में अगर अधर्म के काम है वो आपको गिराएंगे। और आज मैं सभी जन जो मुझे सुन रहे हैं, जो प्रभु की बेटियां सुन रही हैं, जो प्रभु के बेटे सुन रहे हैं, जो उसके दास सुन रहे हैं, दासियां सुन रही हैं, जो उसके नौजवान सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, बूढ़े सुन रहे हैं, मैं ये सबको कहना चाहता हूं कि आप पश्चाताप करें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आप अपने अधर्म के कामों के कारण गिर जाएं। परमेश्वर आपको खड़े रखना चाहता है कलीसिया में, परमेश्वर आपको अपनी किंगडम में खड़े रखना चाहता है, परमेश्वर अपने राज्य में आपको खड़े रखना चाहते हैं। और मैं विश्वास करता हूं
अगर आप इस वचन को ध्यान से सुनेंगे तो आप कभी नहीं गिरेंगे, आप खड़े रहेंगे। आपकी प्रत्येक प्रार्थना का उत्तर इस धरती पे आएगा और आप परमेश्वर के उस उत्तर को पाएंगे। आप और आपके आने वाली पीढ़ियां परमेश्वर के उस कृपा के नीचे रहेंगे, उस अनुग्रह के नीचे रहेंगे और आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। फिर क्या कहता है? अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। इसका मतलब क्या है? जो अपराध आपने किए हैं उसको दूर भी आप ही कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन आज आपको ये सजेशन देता है, ये आपको मुफ्त में ये सलाह देता है कि आप कौन से पाप जो दिखते हैं, बहुत लोगों के जीवन में ऐसे पाप हैं जो दिखते नहीं हैं, जो हिडन में आपके अंदर है, आपके दिमाग में है, आपके दिल में है, आपके मन में है, उन अपराधों की बात करता है परमेश्वर का वचन। अपना मन और अपनी आत्मा बदल डाल। क्या बात है, प्रेज द लॉर्ड। बदल डालो कहता है वो, अपने मन बदल डालो, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे। इसके साथ ही प्रभु बात करता है, छुपाता नहीं है। कहता जो व्यक्ति मरे, इस वचन को सुनने के बाद भी जो व्यक्ति मरे उसकी बात बाइबल करता है। उसके मरने में से मैं प्रसन्न नहीं होता। प्रभु का वचन कहता है जो व्यक्ति इस वचन को सुने और बाद में फिर मर जाए और मैं उसके मरने से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो। इसलिए प्रभु चाहता है आप पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप मसीह में जीवित रहना चाहते हो, अगर आप आत्मा में जीवित रहना चाहते हो, अगर आप जिस्म में जीवित रहना चाहते हो, अगर आप जीवित चर्च में रहना चाहते हो, जीवित कलीसिया में रहना चाहते हो, तो आपको आज पश्चाताप करना है। मैं जानता हूं ये मैसेज विदाउट रीजन नहीं है। ये मैसेज मुझे मिला इसलिए नहीं है कि खाली मैंने संडे है प्रीच करना है। मेरा आज कोई प्रोग्राम नहीं था पहले प्रीच करने का, क्योंकि ये कुछ लोगों के जीवन को बदल देने वाला है प्रभु का वचन, और उस कुछ लोगों में आपका नाम भी शामिल है यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, प्रभु आपको बचाना चाहते हैं, प्रभु अपने गिफ्ट आपके ऊपर उड़ेल देना चाहते हैं, प्रभु अपनी सामर्थ तुझे देना चाहते हैं, प्रभु दिखाना चाहते हैं अंत के दिनों में, जैसे वचन में लिखा है कि मैं अपने आत्मा को एक एक के ऊपर बहा दूंगा। ऐसा ही है, प्रभु कहता है मैं अंत के दिनों में सब लोगों के ऊपर अपने गिफ्ट ऑपरेट कर दूंगा। आप नई नई भाषा में बातें करेंगे, और वचन में ऐसा लिखा है कि जाओ जगत में जाओ, मेरा प्रचारण करो, और यीशु मसीह के नाम से आप बीमारों के ऊपर हाथ रखो, वो शुद्ध हो जाएंगे, चंगा हो जाएंगे। और वचन में ऐसा लिखा है कि तुम जाकर मैसेज दो, उनके दिल में प्रभु काम करेंगे। प्रभु चाहते हैं उन लोगों को बचाना, उन लोगों को नया जीवन देना, प्रभु चाहते हैं। और लिखा है मेरा नाम लेकर तुम प्रार्थना करो, अशुद्ध आत्मा लोगों को छोड़ के चले जाएंगे। कितने विश्वास करते हैं? हाथ उठा के दिखाएं मुझे कैमरा में। प्रेज द लॉर्ड। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके साथ ऐसा करना चाहते हैं। क्या आप रेडी हैं इसके लिए? प्रेज द लॉर्ड। आप रेडी हैं तो आपको आज दिल से पश्चाताप करना है और कहना है प्रभु मेरे पाप मुझे क्षमा कर दो। मैं चाहता हूं मेरे गुनाह मुझे क्षमा कर। मेरे अधर्म के कामों के कारण मैं ना मरूं, मेरे अधर्म के कामों के कारण मैं ना गिरूं, मैं अपने अधर्म के कामों के कारण मैं आत्मा में ना मर जाऊं, और मैं चाहता हूं जीवित रहना प्रभु, इस जीवित चर्च में रहना चाहता हूं। जितनी भी बड़ी न्यूज आए,
न्यूज़पेपर में आए, टेली पे आए, वो मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकती। वो न्यूज मुझे हरा नहीं सकती। वो मेरे विश्वास को तोड़ नहीं सकती। वो मुझे गिरा नहीं सकती, क्योंकि मैं मनुष्यों के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूं। आखिरी आयत हम देखते हैं, आप देखें, अगर आप रसूलों के काम देखें, उसका चैप्टर 2, रसूलों के काम, उसका चैप्टर आप 2 देख लो। हम देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है। और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। इसमें देखो कितनी बातें हैं। पहली बात, आप प्रेरितों के साथ, जैसे आप हमारे साथ संगति करने के लिए आते हैं, यहां प्रभु की प्रेजेंस होती है। पहली बात यह। दूसरी बात, शिक्षा पाने। अगर आप आए, आपने शिक्षा नहीं पाई, फिर आने का फायदा क्या हुआ? तो जब भी चर्च में आओ, एक बात सीख के जाओ। नंबर 3, संगति रखना, यह अलग बात है, ठीक है, परमेश्वर के साथ संगति रखना। नंबर 4, रोटी तोड़ना, जो आप हम अगले हफ्ते करने वाले हैं। कल से फास्टिंग भी शुरू है, और मैंने पहले भी अनाउंस किया है, और आज भी अनाउंस किया गया, मैं खुद भी अनाउंस करता हूं। ये साल थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस का है। तो मैं चाहता हूं इस बार आप 7 व्रत प्रार्थना में आकर प्रार्थना करें। ये आप ही के लिए है, पास्टर देओल के लिए नहीं है, ये जीसस के लिए भी नहीं है, ये प्रभु के वचन के लिए भी नहीं है, ये आपके लिए है कि आप इन दिनों में पश्चाताप करके परमेश्वर के साथ वादा करो और परमेश्वर से प्रॉमिस करो, और उसके आत्मा के वरदानों को अपने ऊपर आने दो। और फिर क्या लिखता है? 4 हमने देखे हैं, 5वां भी देखते हैं, प्रार्थना करना। बहुत परिवार हैं जो घर जाके प्रार्थना नहीं करते। ये 5-6 बातें जो इसमें लिखी है, एक ही वचन में लिखा है, इसके ऊपर आपको बहुत ही ध्यान से स्टडी करना है, मनन करना है। कुछ लोगों को लगता मिला नहीं, मैं फिर बोलता हूं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, रसूलां ਦੇ ਕੰਮ 2 ਅਧਿਆਏ 42 ਤੇ 43 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਜੀਬੋ ਕਰੀਬ ਕੰਮ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਤਕੀ ਸ਼ਾਇਰਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੀ ਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲॉ ਆ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਲॉ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ? ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों ने लगभग 3,000 मनुष्य लगभग उन्होंने मिल गए। पहली बात, अगर आप ये काम करेंगे, आप लोगों को प्रभु में आने के लिए एक रास्ता बन जाएंगे। आप लोगों को प्रभु की किंगडम में शामिल करने वाले बन जाते हैं। और 43 आयत देखना आप, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। प्रेज द लॉर्ड। आज लोग चिन्ह चाहते हैं,
बहुत लोग खोकर खा के गिर गए क्योंकि वो उनका फोकस सिर्फ चमत्कार था। और अब उनका फोकस क्या है? वो उदास हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने खाली चमत्कार पर ध्यान रखा है। जो लोग खाली फ्रूट का ध्यान रखते हैं, पौधे का ध्यान नहीं रखते, उसकी रूट्स का ध्यान नहीं रखते, उसके पत्तों का ध्यान नहीं रखते, उसकी ढालियों का ध्यान नहीं रखते, उसके खाद पानी का ध्यान नहीं रखते, वो एक दिन लिवारस हो जाएंगे। आपको परमेश्वर से प्यार करना है तो इन बातों को मानो। और वचन कहता है सब लोग डर गए थे क्योंकि वहां चिन्ह होते थे और वहां चमत्कार होते थे, प्रेरितों के द्वारा अद्भुत काम होते थे, लिखा है। आज भी बहुत सारे लोग अद्भुत काम देखना चाहते हैं। मैं आपको अद्भुत काम दिखा रहा हूं, लेकिन वो आपके द्वारा ही दिखाना चाहता हूं। कि आप उन अद्भुत परमेश्वर के कामों को, अद्भुत कामों को अपने द्वारा देखना चाहते हैं। हमारी इच्छा बहुत गलत है। हम किसी और के द्वारा अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा आप अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कामों को, चिन्हों को देखें। हमने कभी ये सोचा नहीं। हम दूसरे के द्वारा देखना चाहते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं आप अपने द्वारा परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखें। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपके जीवन को एक नई दिशा पर लेके जाएगा। ये वचन आपको एक नए मार्ग पे लेके जाएगा। ये वचन आपके जीवन को एक पवित्रता वाले जीवन में लेके जाएगा। ये वचन आपके जीवन को धार्मिकता के वस्त्र पहनने के लिए मदद करेगा। ये वचन आपको मसीह में खड़े रहने के लिए मदद करेगा। ये वचन आपको गिराने से बचाएगा, और कोई भी धक्का दे आप गिरेंगे नहीं। आप अंदर से स्ट्रांग हो रहे हैं, आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। मैं ये विश्वास करता हूं। और अगर आप विश्वास करते हैं, अपनी आंखें बंद करें, कुछ समय के लिए ऐसे बैठे ही प्रार्थना करें, और जो जो मैंने बोला आप अपने के लिए घोषणा करें, बोलना शुरू करें। मैं नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूं, धार्मिकता के वस्त्र पहन रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं गिरूंगा नहीं, मैं मजबूत व्यक्ति हूं। थोड़ा ऊंची चला के बोले, मुझे भी सुनाई दे। करिए सब प्रार्थना जरा कुछ समय के लिए। ये आपके लिए समय है। प्रभु के घर में आप बैठे हैं, पवित्र आत्मा की हजूरी है हमारे बीच में। आप पूरे दिल से परमेश्वर के साथ बात करें, वादा करें। आप अधर्म के कामों को छोड़ने के लिए रेडी हैं। आप उन सभी पापों को छोड़ने के लिए रेडी हैं। आप किसी के द्वारा चिन्ह चमत्कारों की अपेक्षा नहीं करेंगे। परमेश्वर आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार करना चाहते हैं। सब मेरे साथ ऐसी प्रार्थना करें एक बार। सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद आज के दिन के लिए। मैंने सुना है आप पापियों को बचाने के लिए आए हैं, और मेरे अधर्म के कामों को आज क्षमा करो। मेरे नींव को मजबूत कर दो। जैसी भी आवाज मेरे जीवन में आए, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। मेरे द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाएगा। मैं विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति हूं। मैं नहीं डरूंगा, नहीं डोलूंगा। अंत तक मैं आपके साथ बना रहूंगा। जोर से चलाकर बोले, मैं अंत तक आपके साथ बना रहूंगा। मैं विश्वास करता हूं आपके मार खाने से मैंने शिफा पाई है, और मैं प्रार्थना करने में लगा रहूंगा, वचन पढ़ता रहूंगा। मेरे कान पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते रहेंगे। मैं डरूंगा नहीं,
मैं कमजोर नहीं हूं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, जो कमजोर है मैं उनके लिए खड़ा हो जाऊंगा, मैं उनको तेरे घर में लेके आऊंगा। प्रभु मेरे मुंह में अपना वचन डाल दे। प्रभु आज अपने हाथों को उठाए कुछ समय के लिए और कहें पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं। अपने हाथों को उठाएं, कहें पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी। हम निरंतर आपके साथ बने रहेंगे पवित्र आत्मा जी, हम निरंतर आपके वचन को सुनते रहेंगे, हम घबराएंगे नहीं। आप इंतजामी परमेश्वर हैं, हमारा इंतजाम करने के लिए प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु हमारा इंतजाम करने के लिए, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, हमारे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु, हमें नया बल दे प्रभु, नया सामर्थ्य दे प्रभु, अपने कामों को हमारे बीच में कार्य करके दिखा प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हम नया बल पाए, नए हो जाए हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन 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 आमीन। जो भी आपके साथ बैठा है एक बार उसको बोल दो धन्यवाद। प्रभु आपको बरकत दे। जो भी आपके साथ बैठा है एक बार उसको बोल दो, कुछ भी बात हो जाए मैं गिरूंगा नहीं, कुछ भी बात हो जाए मैं गिरूंगा नहीं। आमीन आमीन। परमेश्वर ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।